हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत ज्योग्राफी का चैप्टर यानी भूगोल का चैप्टर जो हमारा यहाँ हमारे समक्ष आया है एग्रीकल्चर, जो कि कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो है एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये एमसीक्यू हर एक जगह पर महत्वपूर्णता रखता है, क्योंकि आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एमसीक्यू का प्रयोग किया जा रहा है। और सीबीएसई ने भी आपके समक्ष जो है 20 मार्क्स का एमसीक्यू रखा है और 20 मार्क्स प्राप्त करना सभी बच्चों के लिए प्राथमिक रह जाता है। और आपके समक्ष त्रिपाण स्टडी सेंटर ने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में लाया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर एग्रीकल्चर क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर हियर एग्रीकल्चर दैट्स इम्पोर्टेंट टुडे। Tripan Study Center present of MCQ. The MCQ is the most important for the all competitive exam here. But see the first question here. First question arrive here. In India, zooming primitives from to the cultivations is the call weaver or darius in. Where is call here? That's important question here. In India, zooming and primitives from to the cultivations is called weaver or daya in. Name the state. You know that the name of the state and given option here Odisha, B Chhattisgarh, C Andhra Pradesh, D Madhya Pradesh. That's important. But first of all, you test your knowledge. I give you few seconds for the thought here. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. Question is clear here. In India, zooming and primitives from to the cultivation is called weaver or daya in state. Give the name the state. That's the clear question here. You know that that's important. The Odisha is nothing is called to weaver here, and Chhattisgarh. It is Chhattisgarh is nothing here. Andhra Pradesh, not applicable. Andhra Pradesh is called to the Diwar ya Dalia is zooming here. The D option is correct. Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is in India. Zooming is private from the cultivation is called weavers or Daria. That's important. The option is a D is correct here. Madhya Pradesh. Let's see next question here. The next question arrive on your screen. The question is clear here. Rabi crop are sown in a winter from October to December and harvesting in a summer from April to. There is a examiner asking the question for harvesting in a Rabi crop. The time period here summer from April to A August, B June, C May, D July. That's important question for the exam view here. But first of all, you check your knowledge and note your answer for the notebook. I give you few seconds for you. You must have thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. The question is clear here. Rabi crop are sown in a winter from October to December. That's period time here. There is a crop is sown here. But harvesting in a summer from April to there is generally here April to June. There is a Rabi crop are sown in the winter from October to December and harvesting in a summer from April to June. It means to the option is B correct. That's important here. Option B is correct, June. Let's see next question here. The next question arrive here. That's important. And question here. The Green Revolution was successful in a Punjab, Haryana and Dash and part of Rajasthan. You know that the question is the fill in the blanks here. The Green Revolution was successful in a Punjab, Haryana and name the country for the is black space here.
and the part of Rajasthan? The option is a western Uttar Pradesh, eastern Uttar Pradesh, C. Madhya Pradesh, D. Gujarat. That's important option here. You know that the examiners are given to the clue here. A and B is the western and eastern Uttar Pradesh. It means to answer is 2 has 1 here, and C. Madhya Pradesh and Gujarat already eliminate here. You know that the option is A and B. That's important. But first of all, check your knowledge. I give you few seconds and note the answer for your notebook. You know that you thought of your answer. Let's see what is the answer for this question here. That's important. You know that the question is clear. The Green Revolution was successful in the Punjab, Haryana, and dash and part of Rajasthan. That's important. You know that here are only for the 2 options. I have already eliminated of C and D because examiner asking to many times a similar option here. It means to the western Uttar Pradesh and eastern Uttar Pradesh. But you thought answer B, eastern Uttar Pradesh. It's not applicable here. The eastern Uttar Pradesh is not applicable. The answer is A, western Uttar Pradesh. It means to the A option is correct here. Of western Uttar Pradesh. That's important. And let's see next question here. The next question on your screen, the question is most important here. And question, a kharif crop are growing with the onset of monsoon in a different part of the country, and these are harvested in a dash. You know that is a question is asked in the examiner is very important. A question is clear. Kharif crops are growing with the onset of monsoon in different part of the country, and these are harvested in a dash period time. The option here July to August, B June to August, and C September to October, D October to November. The option is mostly important here. The monsoon, there is a time period is a June July. You know that June and July the monsoon is a different part of country. The growing set off. That's an important clue here. But first of all, check your knowledge. Okay, I give you few seconds for you. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question here. The question is clear. The kharif crop are growing with the onset of monsoon in a different part of the country. That's right. There is a monsoon, and monsoon period here June July is starting here. June July is starting, and different part of country, and there are harvesting in there. The harvesting here. It means to July and June, July to August and June to August is already eliminate here. Already eliminate because there is a growing with the onset of monsoon here. The monsoon period time is July and June. It means A and B already eliminate here. The option C and D there is important. It means to 50-50 chances here. You thought of the October to November. There is a period time is nothing is harvesting here. October to November, nothing harvesting. It means the option C is correct. The option C is correct. September, October, there is a harvesting time period here. Is a kharif crop. That's important. You know that the option C is correct. Let's see next question here. Next question arrive here. That's important. And question here. In a state like Assam, Dash and Odisha, 3 crops are paddy are growing in a year. And these are As, Aman and Bro. That's important. You know that Assam, Dash and Odisha, there are 3 crops growing in a year. The crops name here As, Aman and Bro.
There's a crop's name here. Us, Aman and Bro. There is the third crop. State is asking the name here. A. Uttar Pradesh. B. West Bengal. C. Punjab. D. Haryana. That's important here. But first of all, you check your knowledge. I give you few seconds for you for correct answer right now. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. Question is clear here. In a state like Assam and Dash and Odisha, 3 crop paddy in growing year. 1 year, 3 crops is the same crops here. There is the name of Us, Aman and Bro. That's important here, and clue also is here. Haryana is nothing but these types of cropping here. Haryana is a paddy crops is only one time. Haryana one time, Punjab there is a one times only. It means to the C and D is eliminate here. And the A and B. A, B is here. But Uttar Pradesh is the most important state. But there is a not a 3 crops of paddy are growing in here. It means to the A, Uttar Pradesh is eliminate. A, Uttar Pradesh is totally eliminate here. The option is B is correct. West Bengal. There is the in the state like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are growing in year. And this crops is the name here, Us, Aman and Bro. There is a name of paddy crop here, Us, Aman and Bro. That's important here. And let's see next question here. The next question on your screen, that's important. The question here, India is the second largest producer of rice in the world after. You know the second largest. But name ask you to examiner a first country, there is a first number largest producer country here. The option is clear here. A. Indonesia. B. Japan. C. Malaysia. D. China. You know that is a question is clear. India is the second largest producer of the rice in the country in the world. And first largest producer country is a name here asking examiner. You know that. Come on, test your knowledge first of all. I give you few seconds for you. And note your notebook the correct answer. You know that's important. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. You know that the question is clear here. India is the second largest producer of the rice in the world. But a first country name here. The country is Indonesia. Indonesia is nothing is a largest is a rice producer country here. Japan also nothing. And Malaysia nothing. The answer is correct of the D, China. China is a first larger producer of rice in the world here. It means there is a second number is India and first number is China. It means to the option is D is correct. You go away to D, China. That is the correct answer. Let's see next question here. Next question on your screen. The question is clear. Which one of the following is a Rabi crop? Which one of the following is a Rabi crop? The option is a rice, B gram, C milts, D cotton. You know that is a question is clear here. The Rabi crop here. The Rabi crop. Question is clear. But first of all, you check your IQ level first of all. I give you few seconds for you. Because important and note of your notebook for right answer. Okay. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. The question is clear. Which one of the following is a Rabi crop? Here, answer is clear. But D is here. Cotton is a Kharif crop. And milts also is a Kharif crop. And rice is also is a Kharif crop. But also option is a B here. Gram is a Rabi crop. It means to gram is a correct answer here. You know that the answer is clear. B gram
there is a Rabi crop. Let's see next question here. The next question on your screen, the question is clear. Which of the following are plantation crop? Which of the followings are plantation crop? Option A, rice and maize. Option B, wheat and pulses. Option C, tea, coffee, banana and sugar cane. And D, rice and wheat. You know that the question is clear. Question is clear. There is a which of the following are plantation crop. You know that, understand? Plantation crop. But first of all, you give the answer for this question. I give you few seconds for you. And note of your answer for the notebook. That's important here. And intelligence, you must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question here. Question is clear. Which of the followings are plantation crop? You know that rice and maize is not a plantation crop, and wheat and pulses is nothing is here plantation crop. You understand? I reject to the rice. I reject to the rice. There is two option is eliminate here. Option A, rice is given here, and option D is also rice. It means to the two option already eliminate here. Rice and magazine, and D, rice and wheat. Eliminate. And wheat and pulses, there is a nothing is a plantation crop. It means option C is correct here. Option C is correct. Tea, coffee, banana and sugar cane, there is a plantation crop. That's important for the exam view here. Let's see next question here. Next question on your screen, and question is clear. Choose the correctly matched pairs about their agriculture in the India from the following option. You know that there is a question clear. Choose the correctly matched pair about the agriculture in India from the following option. Option A, Rabi crop are sown October to December. B, gram is a paddy crop. C, As, Aman and Bro is a governmental scheme. And D, Kisan credit card increasing the production. There is a most important question here for the exam view. But first of all, you check your IQ level. And I give you few seconds for the given answer. And answer is not your notebook first of all. Okay? You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question here. The question is clear. Choose the correct match pair about the agriculture in India from the following option. The option is clear. Rabi crop is sown in October to December. And gram is a paddy crop. And As, Aman and Bro is a governmental scheme. And D, Kisan credit card increasing the production. That's important question here. But answer is clear. Answer is clear. Kisan credit card increasing the production is nothing. This answer is correct here. And As, Aman and Bro, there is not a government scheme. There is a name of state. Name of the state, As, Aman and Bro. It means C option is a wrong. And B, gram is a paddy crop. This is nothing here. The gram is not a paddy crop here. It means to option is A is correct. Rabi crop are sown October to December. That's important. And the options A is correct answer for this question. And let's see next questions here. The next question on your screen, the question is which one of the following describe a system of agriculture where a single crop is growing on a large area. Question is clear. Which one of the following describe a system of agriculture where a single crop is growing on a large area? A is called shifting agriculture. B, plantation agriculture. C, horticulture. D, intensive agriculture. The option is most interesting. But first of all,
You give a answer for this question and not your notebook. Okay? You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question here. Question is clear. Question it is a clear because which of the following describe a system of agriculture where a single crop is growing on a large area? It's called to shifting agriculture. Shifting agriculture, nothing is called here. Okay. Intensive agriculture, nothing. And horticulture is not applicable. This answer here. The answer is correct here. B. Plantation agriculture. The plantation agriculture for correct answer. It means to the option B is correct answer for this question. Let's see next question. The next question on your screen and question here. Which of the following condition is not a feature of primitive subsistence farming? You know that is question is clear. Which of the following condition is not a feature of primitive subsistence farming? A. Fertility of soil. B. Monsoon. C. Favorable atmosphere. D. Sufficient capital. You know that is a four option is most intelligent option here. Is I'm not given here most intelligent option here. But first of all, you check your knowledge. I give you few seconds for you. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question here. Question understand? Which of the following conditions are not a feature of primitive subsistence farming? You know that not a feature here. It means to not his here answer. Okay. So A is a fertility of soil is applicable. That's the right here. But is here a question asking not a feature. Fertility of soil is a feature is the right answer. And D monsoon is also is important for this. Monsoon is important for this. And favorable atmosphere also. But not a feature of primitive substance is a farming here. It means D sufficient capital. It means the D option is correct here. The option D sufficient capital for a right answer for this question. The next question arrive here that is important. And question here considering there is importance of agriculture in India. Which of the following were given priorities for improving Indian agriculture? Question is clear here. Considering there is importance of agriculture in India, which of the following were given priority for improving Indian agriculture? A. Establishment of Indian Council of Agriculture Research ICAR. B. Development in the field of meteorology and weather forecast. And C. Establishing of Agriculture University, Veterinary Service and Animal Breeding Center. D. All of the above. The question is clear, but come on, test your knowledge first of all. I give you few seconds for you for answer giving this question and not your notebook this right answer. Okay? You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question here. Question is clear here. Considering the importance of agriculture in India, which of the following were given priority to the improving Indian agriculture? A. Establishment of Indian Council of Agriculture Research ICAR. That's the right answer. The establishment of Indian Council of Agriculture Research ICR. That's important. And right answer. Development in the field of meteorology and weather forecast. That's important also. It means to the B is correct here. And C. Establishment Agriculture University, Veterinary Service and Animal Breeding Center. That's important also here because the improving in agriculture, this is most important for A, B and C. It means to the answer is rightly here D, all of the above. It means to the A, B, C is correct answer for this question. It means to the option D is correct.
That's important question and the answer. Let's see next question here. The next question on your screen, the question here, which of the following types of economic activity in agriculture? Which of the following types of economic activity in agriculture? A. Secondary, B. Primary, C. Tertiary, and D. Organized. That's important option. That's important. But first of all, you test your knowledge. I give you few seconds for a take a answer and write the notebook. That's important here. You must have a thought of your answer. Let us show this answer for this question here. The question is clear. Which of the following types of economic activity in agriculture? That's important. You note that there is a secondary is here, a factory, and tertiary is here, a product is user consumer. But organizing the nothing as the option is correct. It means to the agriculture is economical activity in agriculture is a primary activity. It means to B option is correct here. There is a types of economic activities agriculture is a primary activity. It means to the B option primary activity is the right answer. The right answer is a B for this question. Next question that's important and question here, what is a bro? You know that this question is clear. What is a bro? A kharif crop, jihad crop, rabi crop, D none of these. The question is clear here. But first of all, test your knowledge. I give you few seconds for you. You must have a thought of your answer and write the answer for your notebook. Okay? The question is clear here. What is a bro? What is a bro here? That's important. What is a bro? The kharif crop, jihad crop, rabi crop, and none of these. The answer is clear here. Bro crop mean a kharif crop. Bro crop mean a kharif crop. It means to the option A is correct here. Option A is correct. Is bro mean kharif crop. Bro mean kharif crop. Let's see next question on your screen. The question here, reading of silk worm from the production of silk fiber is known as. Question is clear. Reading of silk worm from the production of silk fiber is known as is A. Sericulture, B. Aquaculture, C. Viticulture, D. Pisciculture. That's important option, but come on, test your knowledge first of all. I give you few seconds for give this answer and write the notebook of correct answer. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. Question understand? The question is clear here. A reading of silk worm for the production of silk fiber is known as. Pisciculture is not applicable for silkworm here, and viticulture nothing, and aquaculture is not applicable. The silkworm is a silk fiber is known as the sericulture. It means to the A option is correct. A sericulture there is a belong to the silkworm. Okay, it means to the A option is correct. That's important. And let's see next question. The next question on your screen, the question here, name the crop growing with the onset of monsoon in different part of the country. Question is clear. Name the crop growing with the onset of monsoon in a different part of country. A. Kharif crop, B. Rabi crop, C. Jiyad crop, D. None of the above. The question is clear. But come on, test your first of all your knowledge. I give you few seconds for you. You must have a thought of your answer, and let's see what is the answer for this important question here. Question is clear. Name the crop growing with the onset of monsoon different part of country. There is a
monsoon crop. It mean to here asking the kharif crop. Option is here A, kharif crop. The kharif crop is most important crop here. The onset of monsoon and different part of country. There is a growing crop here, kharif crop. The is A option is correct. Let's see next question here. The next question, there is a most interesting question here. Question here, kharif dash rabi barley jad and watermelon. The dash is a fill in the blanks other than important. Kharif is related with gram, beet, oil seed, या D, moong. That's important here. But first of all, check your right answer. I give you few seconds for this answer and note a notebook or correct answer here. The questions is clear. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. Question is clear here. Question is clear. Kharif dash rabi barley jiyad and watermelon. This is here a series here. The series is given here. The gram, kharif is gram, it is not applicable here. Kharif is gram, not applicable. Kharif wheat, not applicable. C is oil seed. Is a kharif oil seed? That's the nothing is a matching here. The kharif moong. That's important. That's the right answer. Kharif moong. It means to the D option is correct here. D option is correct for this question. Let's see next question here. Next question on your screen. A question here. Bajra growing a well on sandy soil and Sorosier dash. Bajra grow well on the sandy soil and soil here. That's an important question. Option here black soil, B red soil, C laterite soil, D album soil. That's an important option. But first of all, check your knowledge. You give an answer for this question. I give you few seconds for you. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. Question is clear. Bajra grow well on the sandy soil and swims here. Black soil, red soil, laterite soil, album soil. That's important here and clear question here. And answer is clear also. The answer is right is A black soil, because bajra growing well on the sandy soil and soil is grow here a black soil. It means to the black soil is correct. Option A is correct. Let's see next question here. Next question on your screen. A question is important. Which is the ideal condition for a growing of sugarcane? Which is the ideal condition for the growing of sugarcane? A. Temperature of 21 to 27 degree Celsius and annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. B. Temperature below to the 17 degrees Celsius and 50 to 75 centimeters rainfall. C. Temperature of 25 degrees Celsius and 200 centimeter rainfall. You know that this question is clear. But first of all, you give the answer for this question and write the right answer for your notebook. Okay? You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. You know that question is clear. Which is the ideal condition for growth of sugarcane? Sugarcane, that's important. You know that first of all, use the eliminated method here. None of the above. This is a
Nothing but first of all C option. C option is a totally is wrong here because is here temperature 25 degree Celsius and rainfall 200 centimeter. 200 centimeter it mean to the highly rainfall, and sugar can not grow to the highly rainfall. It mean to the C option is wrong. C option is wrong. And the next year, the temperature below to the 70 degrees Celsius and 50 to 75 centimeter rainfall. You know that this option is also is wrong because is a degrees temperature is at 70 degrees Celsius is not a ideal condition for the growing of sugar cane, and 50 to 75 50 to 20 centimeter rainfall is applicable, but nothing is a good condition here. It means to the option A is correct here because temperature of 21 to 27 degrees Celsius and annual rainfall between 75 centimeter to 100 centimeter. It means to the option A is correct here. Option A, there is a good answer for the ideal condition for growing of sugar cane. That's important. And let's see next question here. The next question arrive here. The question here, choose the correctly matches pair about the major crop of India from the following option. That's important here. A, mills, northeast part of country. B, northwestern part of country. C, pulse, southeastern part of country. D, rice, southeastern part of country. The option is most important, but first of all, you test your knowledge. I give you few seconds for right answer or written on your notebook. Okay? You note of right answer for the notebook. You must have a thought of your answer and also written for the right answer. Let's see what is the answer for this question here. Question understand? Question is clear. Which of the correctly matches pair about the major crop of India from following option? The options here are mills, northeast part of country. Wheat, northwest part of country. Pulses is a southwestern part of country. Rice, southeastern part of country. You know that first of all use a elimination method. Melt, the melt here northeastern part of country, it's the wrong option, and the rice southeast part of country, that is the wrong, and pulses southeastern part of country, C option also is wrong here because pulses is not a growing a southeastern part of country. It means to the option B is correct here. Option B is correct. Wheat is a maximum growth at the northwest part of country. It means to the B option is correct here. The wheat is the northern western part of the country. There is a most important, there is a message pair here. Okay, let's see next question. The next question on your screen, the question is clear here. Full form of KCC is the option A, Kisan Credit Card. B, Kisan Credit Carding. C, Kisan Crediting Card. D, Kisan Credit Card. You know that is the most important question here for the exam view, but first of all you thought of this answer. Okay, I write the notebook of right answer. I give you few seconds for you. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. Question understand? Question is clear. Full form of the KCC. KCC is a full form here. You know that there is an important Kisan Credit Card. Kisan Credit Card. Kisan credited. Credit is nothing here. There is a credit is right, but credited is nothing. It means to the A is a wrong option. B, Kisan Credit Carding. There is a credit right, but carding is wrong. The B option is a
wrong. C. Kisan crediting card. Kisan crediting card. There is a very odd is here a pronunciation. It means to the C option is a wrong. D. Kisan credit card. That's a clear here. Kisan credit card. It means to the D option is correct. Kisan credit card. It's the right option for this question. The case is a full form here. Kisan credit card. It means D option is correct. Next question on your screen, and question is clear. Is rice is a kharif crop that is require high temperature above 25 Celsius and high humidity with the annual rainfall. You know that examiner asks the question here, annual rainfall above the growing of rice crop. That's important. An option here, A 100 centimeter rainfall, B 200 centimeter rainfall, C 150 centimeter rainfall, D 50 centimeter rainfall. Question is clear here. But you test your knowledge. First of all, I give you few seconds for you. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. Question is clear. Rice is a kharif crop that's required to high temperature and high humidity and annual rainfall above. The rice is growing, a maximum is a watering plant here. It means to the water is the most important for growing of rice crop. But 50 centimeter is a rainfall is nothing applicable here. 50 centimeter is very low rainfall here. And 150 centimeter there is a high rainfall. It means 200 is also is a high rainfall. Okay, 200 centimeter rainfall. The option is here A 100 centimeter 100 centimeter is a rainfall is good here. It means to the high humidity with the annual rainfall is 100 centimeters is right. It means to the A option is correct. The A option is 100 centimeter rainfall is correct option for this question. Let's see next question here. Next question on your screen, and question here, wheat require dash of annual rain evenly distribute over to growing season. You know that is the question is clear. Wheat require dash of annual rainfall evenly distribute over to growing season. A 25 to 50 centimeter rainfall, B 75 to 100 centimeter rainfall, C 50 to 75 centimeter rainfall, D 85 to 130 centimeter rainfall. Question is clear here. But you check our knowledge. First of all, I give you few seconds for you. You must have a thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. You know that question is clear here. A wheat require dash of annual rain evenly distribute over to growing season. The wheat is the most important crop. Wheat is the most important for the crop here. But is the rainfall is required is important. The A option 25 to 50 centimeter. It's not an ideal rainfall here. And 75 to 100 centimeter is a very high rainfall. It means not required to 75 to 100 centimeter. And C 50 to 75 centimeter. That's the right answer. Because the ideal is rainfall here. We require 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over to growing season. It means the option C is a correct answer for this question. Let's see next question here. The next question on your screen, question here, dash is the third most important food crop with respect to area of production. You know that dash is the third most important crop with respect to area of production. That's important question here. A option rice, B jowar, C wheat, D maize. That's important here. But come on, test your knowledge.
I give you few seconds for you. And you must have thought of your answer. Let's see what is the answer for this question. Question is clear. Dash is the third most important food crop with respect to the area and production. You know that your general knowledge, there are rice and wheat. There is a most important crop food production here. It means to the A, rice, and C is the most important, and other is a D is a maize. Maize is also important, but the answer is a right here, jowar. The right answer is jowar is the third most important food crop with respect to area and production. So you go with to the jowar. Jowar is the right answer, not a magazine here. It means to the here B, jowar is the correct answer for this question. Let's see next question here. Next question on your screen, and question here, dash is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. Question is clear. Dash is the larger producer and as well as the consumer of the pulses in the world. A, Brazil, B, USA, C, China, D, India. You know that is the question is clear. Question is clear. Dash is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. The India is the right answer. You know that India is the largest produce and larger use here also. India is a larger producer country and consumer of pulses in the world. It means to the India is a correct answer for this question. That's important फॉर द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्यू हियर। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत भूगोल का यहाँ चैप्टर जो हमारे समक्ष आया है एग्रीकल्चर यानी कृषि चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर जगह महत्वपूर्ण रखता है। और MCQ का अपना ही एक विशेष महत्व रखता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा MCQ क्या है। आज देखा जाए तो यहाँ पर हमारा MCQ आया है, वो कहता है कि भारत में खेती का एक अदीम रूप झूमिंग को डैश में बेबर या दहिया कहा जाता है। यानी देखा जाए तो झूमिंग जो कृषि की जाती थी उसको जो है बेबर और दहिया किस राज्य में कहा जाता है। झूमिंग कृषि का मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ पर कृषि जो होती है एक क्षेत्र में की जाती है, जब वहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है यानी उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाती है तो जो है लोग जो है उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और उस क्षेत्र को जो है बंजर भूमि घोषित कर दी जाती है और वो दूसरे जगह फिर जाते हैं, वहाँ पर वन को साफ करते हैं और वहाँ पर फिर से कृषि करते हैं। तो इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर पूछ लिया है कि भारत में खेती का एक अदीम रूप झूमिंग को हम डैश में बेवर या दहिया कहा जाता है, किस राज्य में कहा जाता है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि किस राज्य में जो है बेवर या दहिया कहा जाता है। आप सबसे पहले आंसर इसका सोचिए और अपने जो है नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बाद में आप अपना आंसर जो मैच कर सकते हो कि आपका आंसर कितना सही गया कितना गलत गया। इससे जो है आप पेपर की तैयारी का जो है अच्छे से जो है यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए भारत में खेती का एक अदीम रूप, ये क्वेश्चन जिस बच्चों को पता होगा नॉलेज होगा वही आंसर दे सकती हैं कि झूमिंग को किस राज्य में वेवर या दहिया कहा जाता है। देखिए उड़ीसा में तो नहीं कहा जाता है, जी तो कंफर्म हो गया कि उड़ीसा नहीं है और न ही छत्तीसगढ़ है। तो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश को भी नहीं कहा जाता, तो इसका मतलब लास्ट ऑप्शन डी रह गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सही है। मध्य प्रदेश में झूमिंग कृषि को हम बेवर या दहिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप डी के साथ जा सकते हो, डी जो है सही आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी दिलचस्प है। क्वेश्चन है कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। चलिए ठीक बात है कि रबी की फसलें जो है सर्दियों में बोई जाती है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। आपने देखा भी होगा गेहूं भी इसी में से आता है
जो अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जैसे अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है स्टेमली, तो आप यहाँ अगस्त से किस महीने तक इसको काटी जा सकती है। क्या अप्रैल से अगस्त काटी जा सकती है, या अप्रैल से जून, या अप्रैल से मई, या डी अप्रैल जो है से जुलाई। तो ये काफ़ी मिलता जुलता यहाँ ऑप्शन है। कहते हैं थोड़ा समझ की ज़रूरत है कि अप्रैल से कितने महीने तक काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोचिए और अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे नोट पहले कर लीजिए, जो आपको जो है समझने के लिए काफ़ी पर्याप्त रहेगा। तो आप अपना आंसर सोच लिए होंगे। क्वेश्चन क्लियर है कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती है। तो दोस्तों ये बात सही है। देखिए, अगर आप यहाँ पर अगस्त सोच रहे होगे तो अगस्त तो काफ़ी दूर हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि जून, तो जून काफ़ी हद तक अप्लीकेबल है, लेकिन मई भी अप्लीकेबल है, बट मई को हम इतना नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ ऑप्शन के रिगार्डिंग हमें चलना है। जुलाई है तो जुलाई भी काफ़ी दूर हो जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो इसका सही होगा बी सही है, क्योंकि गर्मी में अप्रैल से जून तक काटी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन जो हुआ बी सही गया, जून। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्या है। हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और डैश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सफल रही। अब यहाँ पर अगर आपको पता होगा कि हरित क्रांति किस किस राज्य में सफल हुई, तो इसका आंसर देना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक आपको बात बता दूँ कि ऑप्शन देखिए क्या है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। अब देखिए ऑप्शन में भी इन्होंने काफ़ी जो है एक अजीब सा जो है द्वंद्व दे दिया है। अब देखिए मध्य प्रदेश और डी अलग दे दिया है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश दे दिया है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा तो सोचने वाली बात ये है कि एग्जामिनर ने दो ऑप्शन एक जैसे क्यों रखे, और सिर्फ इसमें पश्चिम और पूर्वी का ही फ़र्क है। तो इसका मतलब सी और डी जो है एलिमिनेट हो गया। यहाँ सोच में अगर हम लगाएं तो सी और डी एलिमिनेट हो गया, या सी और डी ही ऑप्शन होगा सही, क्योंकि अगर हम ए को अगर एलिमिनेट करते हैं तो बी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि दोनों तो एक ही राज्य के नाम बता रहा है यहाँ पर। तो सोचिए कौन सा आंसर सही होगा, और अपने नोटबुक पे इसको नोट भी कीजिए, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं देखता हूँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और डैश राजस्थान के कुछ हिस्सों में हुआ। तो देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में ये सफल रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस राज्य में सफल हुई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अब ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कि आप पश्चिम के साथ जाओगे कि पूर्वी क्षेत्र के साथ जाओगे, लेकिन हरित क्रांति तो हुआ तो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कर दिया है, टोटली कंफ्यूज कर दिया है कि आप पश्चिम के साथ जाओगे कि पूर्व के साथ जाओगे, क्योंकि हुआ तो चार राज्य बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थे जहाँ हरित क्रांति हुई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसको काफ़ी सफल देखने को मिला। तो आप यहाँ पर इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिमाग में रखना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है हरित क्रांति काफ़ी सफल रही। तो इसका ए ऑप्शन सही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ जा सकते हो जहाँ हरित क्रांति सफल हुई थी। तो ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ फसल उगाई जाती है। बात सही है कि विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ फसलें उगाई जाती है और इसकी कटाई डैश में की जाती है। अब देखिए लगाने की तो बात यहाँ एग्जामिनर ने बता दी कि खरीफ फसलें जो है मानसून की शुरुआत में लगाई जाती है, जैसे कि बरसात शुरू होता है मानसून, जिसमें धान भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसकी कटाई की समय काल क्या बताया गया है। मानसून देखिए तो जून जुलाई से स्टार्ट होती है, जून जुलाई अगस्त के जून जुलाई से स्टार्ट होती है, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर चलिए खरीफ फसल
मानसून की शुरुआत से लगाई जाती है, यानी जून जुलाई से लगाई जाती है, लेकिन हमसे कटाई पूछ लिया है। तो यहाँ पर तो दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। जब जून और जुलाई लगाने का टाइम है तो इसको हम कटाई के रूप में कैसे देख सकते हैं, यानी ए और बी जो है टोटली एलिमिनेट हो गया इस क्वेश्चन से। अब चलिए दो ऑप्शन आपके समक्ष रह गया कि सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर। तो यहाँ दो के क्वेश्चन ऑप्शन रह गया आपके समक्ष। आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है, और अपने नोटबुक पे नोट कीजिए कि बाद में देखिएगा कितना आंसर आपका सही गया है। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, एलिमिनेशन कीजिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन जो होते हैं गलत रहते हैं, जो आपको समझना होता है। अब यहाँ पर मानसून की शुरुआत, अब मानसून देखिए जून जुलाई से ही शुरू होता है। तो जर्नल सी बात है, जब जून जुलाई में स्टार्टिंग ही होता है, फसल लगाने का टाइम होता है, तो हम जून जुलाई में तो काट तो सकते नहीं है। तो इसका मतलब ए बी जो है एलिमिनेट है। हमारे समक्ष जो है सी और डी रह गया। अब देखिए अक्टूबर नवंबर में भी काटा जा सकता है और सितंबर अक्टूबर में भी काटा जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक महीने का डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसका जो है सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, सितंबर और अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर जो है खरीफ फसल को काटने का एक समय बहुत अच्छा है, और इस समय सितंबर अक्टूबर में जो है फसलों को काटी जाती है। तो ये ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। देखिए क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि असम और डैश और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, यानी एक वर्ष में धान के 3 फसल उगाई जाती है। और ये है ओस, अमन, बोरा। ओस, अमन, बोरा, यानी ये 3 फसलों के नाम हैं, ओस, अमन, बोरा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपसे पूछ लिया है कि वो तीसरा राज्य कौन सा है जहाँ पर चावल की जो है 3 फसल एक साल में की जाती है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ के लिए है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे नोट कीजिए सबसे पहले, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है और आपके इंटेलिजेंसी का भी चेक करने का एक तरीका है। देखिए असम और डैश और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिसे हम ओस, अमन, बोरा कहते हैं। तो देखिए बात है यहाँ पर फसलें उगाने की। तो देखिए अगर आपको पता होगा तो हरियाणा में तो 3 फसलें चावल की नहीं उगाई जाती, तो हरियाणा तो एलिमिनेट है। अगर हरियाणा एलिमिनेट करते हो तो पंजाब भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में भी नहीं देखने को मिलता है हमें। ठीक है, पंजाब में भी इतने रेनफॉल होते नहीं, क्योंकि चावल की जो धान की फसल के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश तो आपको पता है कई जब टाइम में सूखा ही रहता है, तो उत्तर प्रदेश को भी आप नहीं जो है इसके अंतर्गत ले सकते हो कि धान खेती साल में 3 बार की जा सके। तो एक ही ऑप्शन शेष रह गया है, बी पश्चिम बंगाल। यानी देखा जाए तो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, और इसे ओस, अमन, बोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अब बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, लिख सकते हो और चेक भी कर सकते हो कि आपने सही दिया कि नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत डैश के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी चावल उत्पादन में भारत का जो स्थान है दूसरा नंबर पे है। ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन पहला स्थान किसका है, ये क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि भारत के बाद दुनिया में दूसरा स्थान भारत को प्राप्त है, तो पहला स्थान किसको प्राप्त है? क्या ए इंडोनेशिया को प्राप्त है, कि बी जापान को कहते हैं, या सी मलेशिया को कहते हैं, या डी चीन को कहते हैं? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। आप आंसर समझ सकते हो और अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हो, क्योंकि बाद में आपको देखना है कितना आंसर आपका सही गया, कितना गलत गया। तो क्वेश्चन क्लियर है। भारत डैश के बाद दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जहाँ तक मुझे पता है कि इंडोनेशिया तो है नहीं, यानी इंडोनेशिया इसमें है नहीं सम्मिलित। उसके बाद देखिए बी जापान, तो जापान भी सम्मिलित नहीं है। अगर बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया भी सम्मिलित नहीं है।
तो इसका मतलब चीन। आपको बता दूं मैं कि चीन जो है पूरे विश्व में चावल उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। चावल के उत्पादन में चीन का नंबर 1 स्थान है। उसके बाद कोई देश का अगर नाम आता है तो वो है भारत का। यानी चीन जो है चावल उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। तो डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। क्वेश्चन क्लियर और डायरेक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। क्या वो चावल है, क्या बी चना है, सी बाजरा है या डी कपास है। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट है और आपको इतना नॉलेज होना ही चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, आप अपना आंसर जो है अपने कॉपी पे नोट कीजिए। ठीक है, आपने ना समझ लिया होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। क्या वो चावल है कि चना है या बाजरा या कपास। जैसा कि आपको पता होगा कि रबी की फसल में कपास तो आता नहीं है, कपास तो नहीं आता है, ये तो चलो मैं बता सकता हूँ। और बाजरा भी जो है रबी की फसल में नहीं आता क्योंकि सारे बाजरा चावल ये सब जो है खरीफ फसल है। चावल बाजरा कपास सब खरीफ के फसल है। तो इसका मतलब इसका बी चना सही होगा। चना जो है रबी का फसल है तो इसका आंसर हो गया बी चना। तो बी चना के साथ आप जा सकते हो। इसका आंसर बी जो है चना इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसलें हैं। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण, वृक्षारोपण का मतलब होता है पेड़ लगाना। ठीक है, ऑप्शन देखिए चावल और मक्का, बी गेहूँ और दालें, सी चाय कॉफ़ी केला और गन्ना, डी चावल और गेहूँ। तो आप अपना आंसर सोचिए, अपना कॉपी पे नोट कीजिए। मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा दिमाग लगाने की बात है दोस्तों। यहाँ पर पूछ लिया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वृक्षारोपण फसलें यानी पेड़ों को रोपा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि चावल जो है एक तरह का वृक्षारोपण फसल नहीं है। ठीक है, न ही गेहूँ है। जैसे ही हमने चावल और गेहूँ को एलिमिनेट किया, इसका 3 ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। ए में देखिए चावल यूज़ है, बी में भी चावल है और डी में भी गेहूँ है। यानी ए में चावल हो गया, डी में भी चावल है और बी में गेहूँ है। तो गेहूँ और चावल जो है एक तरह का जो है वृक्षारोपण फसल नहीं है। ठीक है, ये वृक्षारोपण फसल नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही गया। चाय कॉफ़ी केला गन्ना जो है एक तरह का वृक्षारोपण फसल है। तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। सी ऑप्शन सही है। चाय कॉफ़ी केला और गन्ना एक वृक्षारोपण फसल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में कृषि के बारे में सही सुमेलित जोड़ी का चयन करें। यानी ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो का सही है, जो सही मैचिंग की गई है। देखिए देख लेते हैं कौन कौन से मैचिंग यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये जो है रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक, क्या ये ऑप्शन सही है। या चना जो है धान की फसलें हैं, चना जो है धान की फसलें हैं। सी ओस अमन और बोरा सरकारी एक योजना है। या डी किसान क्रेडिट कार्ड उत्पादन में वृद्धि है। अब देखिए इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण सुमेल दिया हुआ है। सुमेल का मतलब है कि आपको मैचिंग सही कौन सा है। तो आप अपना आंसर सोचिए और अपनी नोटबुक पे पहले नोट कर लीजिए, बहुत काफ़ी अच्छा रहेगा, समझ के लिए भी ज़रूरी है। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया हो गया। देखिए यहाँ पर अगर हम बात देखें तो डी किसान क्रेडिट कार्ड उत्पादन वृद्धि की बात तो नहीं कह सकती, तो डी तो जो है गलत है। ओस अमन बोरा जो है देखा जाए तो हमने पहले भी इसके बारे में जाना है समझा है। ठीक है, ओस अमन बोरा जो कि एक फसलों के नाम है जो साल में 3 बार उगाई जाती है गेहूं का, तो ये सरकारी योजना तो हो नहीं सकती, तो ये गलत है। ठीक है, धान या चना की फसलें, तो ये भी सुमेल गलत है। इसका मतलब हमारे समक्ष एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है, ए रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक, ये ऑप्शन सही है। यानी ए ऑप्शन सही है कि रबी फसलें बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक, तो ये सही गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े पैमानों पर उगाई जाती है? किस तरह का है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है, यानी एक प्रणाली है जो बड़े फसलों के क्षेत्र पर उगाई जाती है? क्या स्थानांतरित कृषि कहलाती है वो, या वृक्षारोपण कृषि कहलाएगी, या बागवानी, या गहन कृषि? किससे अधिक उत्पादन होगा? क्वेश्चन क्लियर है, किससे जो है इनमें से अधिक उत्पादन की बातों को कहता है? तो आप अपना ऑप्शन लगा सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अब अपना ऑप्शन लगा लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है? क्या हम उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं? क्या आप सोच रहे हो कि वृक्षारोपण कृषि है, या सी बागवानी है, या डी गहन कृषि है? गहन कृषि का मतलब होता है जो अधिक मात्रा में हम गहन लगाते हैं, लेकिन देखा जाए तो स्थानांतरण कृषि एक जगह से दूसरे जगह जाके किया जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं, यानी ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। और गहन कृषि यानी कितना अधिक कृषि कीजिएगा, गहन करिएगा, तो डी भी है, एलिमिनेट हो गया। अब रह गया बी और सी। बागवानी तो पता ही होगा, और वृक्षारोपण तो पता होगा कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उससे हम कृषि लें। तो देखा जाए बागवानी भी यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब बी सही है, वृक्षारोपण कृषि। तो देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है इस क्वेश्चन का। काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है बी, वृक्षारोपण कृषि, जिससे हम अधिक फसलें पर उगाई जा सकती है। तो ये काफ़ी महत्व है। देखिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अदीम निर्वाह खेती की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अदीम निर्वाह खेती की विशेषता नहीं है? क्या ए मिट्टी की उर्वरकता, बी मानसून, या सी अनुकूल माहौल, डी पर्याप्त पूंजी? तो ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है, समझने वाली है। आप अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है और अपने नोटबुक पर पहले नोट कीजिए। ठीक है, आप नोट भी कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि कौन सी स्थिति जो है अदीम निर्वाह खेती की विशेषता नहीं है, यहाँ नहीं की बात कर रखा है। तो मिट्टी की उर्वरकता जरूरी है, यानी अदीम निर्वाह खेती के लिए ज़रूरी है। मानसून भी ज़रूरी रखा जाता है, और अनुकूल माहौल होना ये तो बहुत ही उत्तम बात है। तो यहाँ पर तो तीनों ऑप्शन सही गया, यानी डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि नहीं की बात कहा गया, इसलिए जो है डी गलत है। अपर्याप्त पूंजी, ये बात से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अदीम निर्वाह खेती के लिए मिट्टी की उर्वरकता, मानसून, अनुकूल माहौल चाहिए, लेकिन नहीं क्या चाहिए? पर्याप्त पूंजी की इसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात की बात है, ना कि इसके अंतर्गत है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, काफ़ी ज़रूरी था। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि भारत में कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता दी गई है? यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर है कि भारत में कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि में सुधार के लिए, जो भारतीय कृषि है उसमें सुधार के लिए किस किस संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है, यानी ICAR की जो है स्थापना की गई है। मौसम विज्ञान और मौसम पूर्व अनुमान के क्षेत्र में भी विकास किया गया है। सी जो है कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना करना, या उपयुक्त सही? देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्लियर समझ में तो आ ही गया होगा कि भारतीय कृषि में सुधार करने के लिए क्या क्या सरकार ने किया है। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए, दे दीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे, काफ़ी ज़रूरी रहेगा, समझ के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, लिख लिया होगा। देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। कृषि को महत्व को देते हुए भारतीय सरकार ने कृषि में सुधार के लिए किस किस विभागों का स्थापना किया है? तो देखा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना तो की गई है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बी है मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के लिए विकास। देखिए भारत सरकार ने सबसे पहली बात यही रखी कि कृषि में अगर पूर्व हम जो है मौसम का अनुमान लगा लें, जो किसानों को नुकसान होते हैं उसे बच जाएंगे। तो मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान जो है कृषि के सुधार के अंतर्गत है, इसके लिए बी ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। आगे देखिए कृषि विश्वविद्यालय और पशु चिकित्सा सेवा
पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना करना। देखिए ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशु के प्रजनन करने का भी यहाँ पर सुविधा बनाई गई है और कृषि विश्वविद्यालय में बच्चे जो है पढ़ के कृषि के महत्व को और समझेंगे। तो इसका मतलब यहाँ देखा जाए तो ए बी सी सारे ऑप्शन सही हैं, यानी भारतीय कृषि सुधार में इन तीनों का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। तो आप जो है डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। डी जो है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, आंसर आप लगा सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ हैं। आपको बता दूं कि कृषि जो है कहीं भी किसी से भी बात कर लीजिए, प्राथमिक जो है एक्टिविटी ही है, यानी प्राथमिक गतिविधियाँ हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन बी सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य जो सेकेंडरी के अंतर्गत आता है वो होता है कृषि उत्पाद, यानी कृषि से जो मैन्युफैक्चर हुई है वो माध्यमिक में आती है और तृतीय में जो आता है जो उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। तो इसका मतलब जो है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्राथमिक जो है गतिविधियाँ हैं। तो आप बी ऑप्शन लगा सकते हो। ये आंसर बहुत ही आसान, बहुत ही क्लियर था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत क्लियर और छोटा है कि बोरा क्या है। बोरा हम किसके लिए यूज़ करते हैं। बोरा जो है एक शब्द है, हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किस फसल के लिए यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर है। क्या आप खरीफ की फसलों के लिए यूज़ करते हो, या जायद की फसल के लिए, या सी रबी के फसल के लिए, या इसमें से कोई नहीं। आप पहले अपना आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ किसके लिए कहते हैं। आपने लगा लिया होगा। देखिए बोरा का यही अर्थ होता है कि ये गेहूँ नहीं धान के उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, गेहूँ नहीं धान के लिए। तो बोरा जो वर्ड है धान के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब धान किस फसल के अंतर्गत आता है, क्या रबी की फसल के आता है कि जायद। रबी जो होती है देखा जाए तो इसका जो है बोने का दिसंबर से नवंबर दिसंबर होती है, ठीक है, बोने का टाइम। काटने का जून जो है अप्रैल से जून तक माना जाता है। जायद के फसल जो होते हैं आपको पता होना चाहिए, जायद के फसल ऐसे फसल होते हैं जो कुछ समय काल के लिए होते हैं। जैसे आपको पता है कि अप्रैल मई में जो है सब कुछ कट जाते हैं, तो अप्रैल मई से लेकर जून तक जो है हम जायद के फसलें लगा लेते हैं, जिसमें ककड़ी उकड़ी सब आ जाती है, ठीक है। इस समय ये आपको बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है। तो देखा जाए तो खरीफ की फसल जो है धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। तो बोरा शब्द जो है धान की फसल के लिए बोली गई है, यानी खरीफ फसल। इसका मतलब हुआ कि इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन है कि रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किस नाम से जाना जाता है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इजी है और ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। देखिए ए रेशम उत्पादन, बी जल कृषि, सी अंगूर की खेती और डी मछली पालन। अब जर्नल सी बात है, आंसर तो खुद ही बोल रहा है यहाँ पर। तो आपने अपना लगा लिया होगा आंसर। तो आंसर तो पता होगा कि रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों का पालन किस नाम से जाता है। रेशम उत्पादन, जर्नल सी बात, रेशम से है तो रेशम ही होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, इसमें सोचने की तो बात थी नहीं। कहते दोस्तों कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं और समझना बहुत ईजी रहता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर जो है ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो, रेशम उत्पादन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाने वाली फसल का नाम बताइए। यानी जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है कौन सी फसल लगाई जाती है। क्या वो खरीफ की फसल होती है, या रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है, या उसमें से कोई नहीं। देखिए उसमें से कोई की तो बात यहाँ पर होगी ही नहीं, तो डी तो ऐसे एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि 3 तरह के फसल होते हैं, या तो खरीफ की फसल होगा, या रबी की फसल, या जायद का फसल होगा।
और हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत से जो फसल लगाई जाती है उस फसल को किस नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग आंसर है। आप पहले अपना आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या है। आपने लगा लिया होगा। देखिए, जायद की फसल जो होती है, मैंने जैसे बताया था, गर्मी के टाइम लगाई जाती है, क्योंकि ये इसमें ककड़ी कुड़ी आती है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब आती है। तो जायद की फसल तो इस समय लगाई जाती है। रबी की बात करें तो रबी की फसल जो होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लगाई जाती है और अप्रैल से लेकर जून तक काट ली जाती है। तो ये तो मानसून इस समय तो रहती नहीं है। अब जून से मानसून स्टार्ट होता है। जून जुलाई से जो होता है बरसात की जो है फुहारे आने लग जाते हैं। तो इस समय जो है धान की खेती लगाई जाती है और धान की कृषि को हम खरीफ फसल कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन ए है सही है, यानी ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन ए खरीफ फसल सही आंसर है। यानी जो है मानसून की शुरुआत से उगाई जाने फसल के नाम को हम खरीफ की फसल कहते हैं, यानी ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है खरीफ डैश रबी जौ जयाद तरबूज। खरीफ किसके साथ है? जैसे रबी जो है जौ जयाद तरबूज के साथ है, तो रबी के साथ कौन सा फसल जो है मैच करेगा? क्या ग्राम करेगा? ग्राम यानी चना, बी गेहूँ, सी तिलहन, डी मूंग। अब तो ये क्वेश्चन का आंसर देना भी आपके लिए आसान हो गया होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जितने भी हमने किया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि खरीफ डैश रबी जयाद और तरबूज, इसमें सुमेल करना है कि क्या आंसर सही होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम जो है यहाँ पर डी मूंग के साथ हम इसको सुमेल कर सकते हैं, यानी मूंग के साथ काफ़ी अच्छा जाएगा खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ फसल मूंग, रबी फसल जौ जयाद और तरबूज। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन के साथ आप यहाँ जा सकते हो। डी काफ़ी सही रहेगा इस ऑप्शन के साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए, बाजरा रेतीली मिट्टी और उथली डैश पर अच्छी तरह उगाई जाती है। बाजरा जो है रेतीली मिट्टी के साथ उथली कौन सी है मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है? क्या वो काली मिट्टी है, या लाल मिट्टी है, या लेटराइट मिट्टी है, या जलोढ़ मिट्टी है? तो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। आप यहाँ पर अपना आंसर दे सकते हो, समझ सकते हो कि काली मिट्टी के साथ जा रहे हो कि लाल मिट्टी के साथ जा रहे हो, या लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑप्शन है। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए, दे दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपका नॉलेज का भी पता लग जाएगा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया है। देखिए, बाजरा रेतीली मिट्टी, ठीक है, और उथली जलोढ़ मिट्टी के साथ होती है नहीं, लेटराइट मिट्टी नहीं, लाल मिट्टी नहीं, काली मिट्टी के साथ होती है। तो काली मिट्टी के साथ जा सकते हो कि बाजरा रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगता है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी के साथ काली मिट्टी जो है इसका अच्छा सुमेल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन है कि गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है? गन्ना अगर हमें लगाना है, का पेड़ लगाना है, तो इसके लिए आदर्श स्थिति क्या होगी? क्या ए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए? बी जो बोला है 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। उसके बाद सी ऑप्शन कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर वर्षा, या डी उपयोग में से कोई नहीं। देखिए, आप अपना आंसर सोच सकते हो, क्योंकि ज़रूरी आपके लिए सोचिएगा तभी आगे बढ़िएगा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। देखिए, गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श स्थिति कौन सी होती है? बात करें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर वर्षा, तो गन्ना तो 100 सेंटीमीटर वर्षा में तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो ऑप्शन देखिए सी तो बिल्कुल गलत है। सी 100 सेंटीमीटर वर्षा यानी हाईवी वर्षा की बात कर रहा है ये 100 सेंटी, और गन्ना के लिए इतना काफ़ी हद हो जाती है। और बी देखिए 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान, गन्ना के लिए 17 से अगर कम हो तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। और बरसात की देखिए 50 से 75, यानी ये काफ़ी कम वर्षा को यहाँ दर्शा रहा है।
ये देखिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच। तो ये ऑप्शन काफ़ी हद तक सही है। इसका मतलब जो है इस क्वेश्चन का आंसर ए है, यानी ये आंसर सही है। तापमान में 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकती हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन देखिए क्लियर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की प्रमुख फसलों के बारे में सही सुमेल जोड़ी क्या है। यहाँ पर आपको जो है सुमेल किया गया है, यानी मैचिंग की गई है। आपको सही मैचिंग को जो है यहाँ चुनना है, समझे। तो भारत की प्रमुख फसलें यहाँ दी गई है। कौन सी फसल सही है। बाजरा देश का उत्तर पूर्वी भाग में उगाई जाती है, या बी गेहूं देश का उत्तर पश्चिमी भाग में होती है, या पल्स यानी दाल देश के दक्षिण पश्चिम भाग में होती है, या चावल देश के दक्षिण पूर्वी भाग में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सुमेल है। आप इसका आंसर सोच सकते हो, दे सकते हो कि आखिर क्या हो सकता है इसका आंसर। चावल देश के दक्षिण पूर्वी भाग में, देखिए चावल अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी की जगह अगर उत्तर साइड होता तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता। तो डी तो सही नहीं है। सी की बात करें तो देश के दक्षिण पश्चिम भाग, देश के दक्षिण पश्चिम भाग की बात करें तो ये भी बात यहाँ गलत साबित होता है। यहाँ पर इस क्षेत्र में तो होना संभव नहीं है। बाजरा देश का उत्तर पूर्वी भाग, तो ये भी गलत है। गेहूं देश का उत्तर पश्चिम भाग, तो गेहूं जो है उत्तर पश्चिमी भाग में जरूर उगाई जाती है, यानी बीसवें का जो है बी ऑप्शन सही है। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि गेहूं देश का उत्तर पश्चिम भाग, ये सुमेल सही है, यानी इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्लियर है कि केसीसी का पुण्य रूप क्या है, कौन सा इसमें जो है सही फुल फॉर्म है। क्या ए किसान क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या बी किसान क्रेडिट कार्डिंग है, और सी किसान क्रेडिटिंग कार्ड है, या डी किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए यहाँ पर इसको जो है हिंदी में अगर मैं लेता तो कई ऑप्शन एक जैसा हो जाता, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट का क्रेडिट ही लिखेगा, क्रेडिटिंग का क्रेडिटिंग ही लिखेगा, ठीक है, और कार्डिंग का कार्डिंग ही लिखेगा, कार्ड ही लिखेगा। तो इसका मतलब है कि इसको हिंदी में रूपांतरण करना संभव नहीं था, लेकिन आपके समक्ष यहाँ ऑप्शन आ गया है। आप अपना सही आंसर इसमें से बता सकते हो, और ये क्लियर आपको बता रहा है, यहाँ आंसर ही बता रहा है। देखिए ऑप्शन क्लियर है कि ए किसान क्रेडिटिंग कार्ड, देखिए क्रेडिटेड, इसमें बोलने में ही बहुत अजीब सा लग रहा है, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगला देखिए बी किसान क्रेडिट क्रेडिंग कार्डिंग, कार्डिंग यहाँ बोला है, कार्ड इधर कार्डिंग की बात यहाँ कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी बोल रहा है किसान क्रेडिटिंग कार्ड, क्रेडिटिंग, क्रेडिटिंग भी गलत है भाई, तो इसका मतलब ए बी सी गलत है। तो यहाँ पर देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, बोलने में भी कितना आसान है, किसान क्रेडिट कार्ड, यही बोलते हो ना आप लोग भी। तो केसीसी का पूरा नाम क्या होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको बोलने ही से ही पता लग जाता है। अब हम किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं ना कि किसान क्रेडिटिंग कार्ड कहते हैं या किसान क्रेडिट कार्डिंग कहते हैं, तो ऐसे चीज़ें अलग होती है, और यही आपको यहाँ पर समझना है कि एग्ज़ाम ने पूछा क्या है, कहना क्या चाहता है, और सही ऑप्शन होगा क्या। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है चावल एक खरीफ फसल है। देखिए चावल जो है एक खरीफ का फसल है, यानी धान की बात कर रहा है, जिसके लिए उच्च तापमान 25 सेल्सियस के ऊपर चाहिए और उच्च आर्द्रता चाहिए। तो कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमसे बरसात पूछ ली है कि चावल की खेती के लिए कितना सेल्सियस जो है बरसात की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए ए ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ेगी, बी 200 सेंटीमीटर, सी 150 सेंटीमीटर, या डी 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। अब अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है, क्योंकि आपको भी अपना सोच लगाना है और अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिखना है। इससे आपकी तैयारी का पता लग जाता है कि आप कितना जो पेपर के लिए तैयार हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपकी कितनी तैयारी है।
तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि चावल एक खरीफ फसल है जिसके लिए उच्च तापमान 25 सेल्सियस से अधिक चाहिए हमें, और उच्च आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी की भी काफ़ी चाहिए। तो वर्षा कितना वार्षिक की आवश्यकता होगी? 50 अगर हम देखें तो 50 देखिए बहुत ही कम है, क्योंकि चावल यानी धान कृषि है, तो धान कृषि जो है मिनिमम या मैक्सिमम दोनों के बीच का जो है हमें बरसात की ज़रूरत पड़ती है। न कभी अधिक हैवी होगा तो वो गल जाएगा, और कम होगा तो ग्रो नहीं करेगा। तो डी जो देखिए एलिमिनेट हो जाता है, डी बहुत ही लो की बात कर रहा है, यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा तो बहुत ही नीचे चला गया, तो डी तो एलिमिनेट है। अब सी देखिए 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर हैवी होता है। 150 सेंटीमीटर का वर्षा की बात करें वार्षिक वर्षा की तो हैवी होता है, तो सी भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए डी, जब हमने सी को एलिमिनेट कर दिया हैवी वर्षा के रिगार्डिंग, तो बी तो ऑटोमेटिक ही एलिमिनेट हो गया। 100 सेंटीमीटर वर्षा 200 सेंटीमीटर वर्षा काफ़ी अधिक हो जाती है, तो इसका मतलब हमें ए ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि ए 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है वार्षिक वर्षा काफ़ी सफिशेंट है। चावल कृषि के लिए ऐसे ही बरसात की आवश्यकता होती है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो। तो ये काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर MCQ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। देखिए, गेहूं के बढ़ते मौसम में सामान्य रूप से वितरित डैश वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के बढ़ते मौसम में सामान्य रूप से कितनी वर्षा की आवश्यकता हो सकती है? तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप कि कितनी जो है गेहूं के वृद्धि के लिए वर्षा की जरूरत पड़ सकती है। क्या ए 25 से 50 सेंटीमीटर जो होना चाहिए बरसात, या बी 75 से 100 सेंटीमीटर, सी 50 से 75 सेंटीमीटर, या 85 से 130 सेंटीमीटर? तो क्वेश्चन तो क्लियर है, आप अपना आंसर सोचिए और अपने नोटबुक पे लिखिए, जो कि काफ़ी महत्व रखेगा। देखिए बात अगर हम करें यहाँ पर गेहूं के बढ़ते मौसम में गेहूं के लिए वर्षा की आवश्यकता, तो 25 से 50 की बात किया जाए तो ये बहुत ही कम होता है। वार्षिक वर्षा बहुत ही कम होता है, जिसमें फुहारे ही होते हैं, इतनी कम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 75 से 100 सेंटीमीटर की बात करें तो थोड़ा सा हैवी होता है गेहूं के लिए, क्योंकि गेहूं जो है अधिक बर्दाश्त नहीं करता है बरसात को। धान के लिए तो चाहिए, बरसात चाहिए, लेकिन गेहूं की फसल के लिए इतना अधिक बरसात की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब डी भी गलत होगा, क्योंकि 85 से 130 की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। तो सी सही है, क्योंकि सी 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ये गेहूं के फसल के लिए अप्लीकेबल है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं को बढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से डैश तीसरे सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। क्वेश्चन क्लियर है, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से तीसरे सबसे महत्वपूर्ण फसल, ए चावल, बी ज्वार, सी गेहूं, डी मक्का। देखिए लोग इतना, आप लोग भी दिमाग पर लगा रहे होंगे कि चावल गेहूं तो पहले दूसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। तीसरा आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि मक्का है। चलिए आपका विचार जो भी है, आप अपना आंसर जो है लगाइए, ठीक है, क्या आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है साफ क्लियर तौर पर कि क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से। अब यही बात यहाँ पर मेन टर्निंग पॉइंट बन जाता है कि क्षेत्रफल और उत्पादन के दृष्टि से तीसरा महत्वपूर्ण फसल कौन सा है। और चावल गेहूं तो चलिए पहले दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए चावल तो एलिमिनेट हो जाता है। अब द्वंद्व रह गया ज्वार और डी मक्का। कई लोग तो मक्का को सोच रहे हैं, जो सही भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सही नहीं है डी, यहाँ पर ज्वार है। क्योंकि मक्का तब आता है जब इसने क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से नहीं पूछा होता, तब आंसर होता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में भी कहते हैं ना, एक नई बात डाल दी कि क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार जो है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल है। तो आप बी पे जा सकते हो, ज्वार जो है सबसे इम्पोर्टेंट फसल है। बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि डैश दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश है। देखिए दाल सबसे अधिक किस देश में खाई जाती है। ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। देखिए ऑप्शन है ब्राज़ील, बी USA, सी चीन,
डी भारत। तो आप अपना आंसर लगा दीजिए कौन सा है। आपने लगा दिया होगा आंसर, कोई खास नहीं है। मैं बता दूं कि भारत जो है दुनिया के सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और दालों का उपभोग भी करता है। यानी देखा जाए तो भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोग देश है। तो भारत यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले क्वेश्चनों में हम मिलेंगे, अगले बात और भी करेंगे, एमसीक्यू करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा, और केयर ही करना हर एक व्यक्ति का फ़र्ज बनता है। ठीक है, इसे सोचिए नहीं, जितना हो सके जो है शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना होता है। जिन बच्चे को पसंद आएगा, जो आपके कांटेक्ट में होंगे, जिनको अच्छा लगेगा वो वीडियो को देखेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगेगा नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखिए अच्छा और बुरा का सवाल नहीं उठता है, यहाँ पर सवाल उठता है समझ की और इम्पोर्टेंट्स की, क्योंकि ये एमसीक्यू है, कोई आपका एंटरटेनमेंट नहीं है। पढ़ने की बात है, समझने की बात है, और पढ़ाई लिखाई में जितना बार देखा जाए, जितना बार किया जाए वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पर आपका मन लगे चाहे ना लगे, अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन देखना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई तो ऐसे ही करना होता है। तो यहाँ पर ना तो ये कोई वीडियो है जिसमें गाना चल रहा हो या कुछ और भी चल रहा हो, ये आपके समझ के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए जिससे दूसरे बच्चों को भी मिल सके। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी एक बार तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़िएगा तो कहते हैं अपना एजुकेशन ख़त्म यहाँ पर करके ही हटिएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।